Thank We you so much. can. Thank you very much. And I request Mr. Amit to carry on with this proceeding of final session of day 3 of this international workshop. Amit. Good afternoon, everyone, to the third session of this third day of International Workshop on Entrepreneurship Development by Entrepreneurship and Development Cell, Rajkiya Engineering College, Azamgarh. This session will be taken by Professor Pavnesh Kumar from Department of Management Sciences, Mahatma Gandhi Central University, Bihar. Now, I would request our workshop convener Dr. Amrish Singh sir to offer welcome addresses to our guest speaker Professor Pavnesh Kumar. Thank you very much, Amit. Sir, we like to have you physically. We planned for your physical interaction, but due to your busy schedule, we have to accommodate this. But we want to you physically. Before welcoming you formally, I made my request to you. So I hope I am audible to you on behalf of REC Azamgarh family, and we have the institute in your local premises. I think we have the outsider, you are the local. So we welcome you again in this your institute. I can say this. It's in your periphery, and always you are a guiding and motivating force behind me to organize such activity, because I inspired a lot by the way you are actually leading the Pandit Madan Mohan Malviya School of Management there as a dean and the head of the department for a very long time. Earlier you saw the another center university, and a very now you are in league of Professor. I am very hopeful that the you will definitely grace the management fraternity at large in the upcoming time. So we are very thankful to you that you are going to deliver a session on process of new venture creation, and I hope the participants of this work will really benefited by your thought-provoking session. Thank you very much, sir, for joining us for this session. Now, Amit, you please share the brief about Professor Ponensi, and then we will start formally. Okay. Thank you very much, sir. First of all, on behalf of whole Rajkiya Engineering Azamgarh family, I would like to welcome Professor Pavnesh Kumar on this 1 week long workshop on entrepreneurship development by Entrepreneurship and Development Cell, Rajkiya Engineering College, Azamgarh. The session will be on the topic the process of new venture creation, which is most useful topic for our participants present here to get their startup registered and form it as a legal company which they can deploy in the market. Professor Pavnesh is currently head at Department of Management Sciences, Mahatma Gandhi Central University, Bihar. Professor Pavnesh has completed his PhD from Veer Bahadur Singh Purvanchal University and MBA from Faculty of Management Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. Professor Pavnesh has research interest in business, finance and international businesses. Professor Pavnesh has over 17 years of teaching experience in the field of business and management. Professor Pavnesh has been working with many institutions and been working as faculty member since 2002 in various business schools such as IILM and the ICFAI University in various capacities. In his teaching career, Professor Pavnesh has taken very crucial subjects in the field of businesses and finances, such as international financial management, investment banking and financial services, bank lending and credit appraisal, corporate finance, entrepreneurship development, business environment, risk and insurance. So, with these words, I would request Professor Pavnesh to kindly start with today's workshop. Thank you so much, Amit ji. My voice is audible. My voice is audible, sir. Yes, yes. Okay. Okay. So first of all, let me congratulate the Rajkiya Engineering College and especially Dr. Amrish Singh, who is actually the man behind conducting, and his team also, who is behind the concept of 1 week international workshop on entrepreneurship development. So congratulations to your team, and because this type of program cannot be held
without the support of the director of the institution. So my kudos to the director, Rajki Engineering College, Professor B.K. Tripathi sir also, who has basically been a guiding force behind organizing such type of international workshops. And I was fortunate enough to be the part of the lecture where Mr. Abdul Rahman was delivering his lecture. I could attend at least 15 minutes. I was there. So I could see that there are 5 to 6 international speakers in this workshop. And truly, it is an international workshop. And some of the professors who have been my teachers also, they are part of this workshop from BHU. So, and it is proud privilege for me to deliver lecture, especially in the engineering college, which is located in the district where I was born and where I am connected to. I belong to Azamgarh, working in Motihari, and I took my education in most of the education in Varanasi. Okay, so it is. I used to deliver many lectures in different places, but when it comes to Azamgarh, it is very close to my heart. So Dr. Amrish has requested me to come physically, but due to certain my personal engagements, I could not come, and I changed my program yesterday only. And I am thankful to him that he could accommodate me in the online mode. And I'm very happy to see that, because I could see this auditorium, that it is in Azamgarh, and the way this program is conducted in a professional way. So a lot of congratulations to your team, sir. Now the topic which has been given to me is the process of new venture creation. I recently, me with my research scholar has written a book where we have basically compiled the strategy, the idea of 75 successful entrepreneurs, especially in India, and that book is in Hindi. Because when we search the books in Hindi on entrepreneurship development, and especially if we want to learn something about the entrepreneurs who have created great ideas and in India, we could not find. So we have tried to write a book on entrepreneurship, and especially with the 75 great entrepreneurs of India. So that book is in Hindi. I hope the audience is from various backgrounds. They are from various backgrounds. Maybe some may be research scholars, some may be faculty members, some may be senior faculty members also. So I have tried to make presentation in such a way that can be understood by everyone. So let me start my presentation, and I hope that my presentation is visible to all of you. So please confirm it. Is my presentation is visible? Ji. So my presentation is visible. So the process of 1 minute. If there is some technical. Amrish ji, It's on the screen now. अरे वहां से अनम्यूट करोगे तब जाएगी. आप खोल के बोल दिया था. Excuse me. It's on the screen, sir. Please proceed. सर अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है.
Yes, yes. Okay, so let me start. My presentation is on the process of creating new ventures. Okay, so first of all, let me. It should be bilingual or it may be in English only. It can Please confirm bilingual me. also, not an issue. बाइलिंगुअल रहेगा कि दोनों रहेगा? ऑडियंस के हिसाब से ये बता दें. It's up to you. Bilingual also. हाँ ठीक, ओके. सो इफ यू हैव टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर, वी हैव three four options. Number one, if you want to create, if you have any idea, we have four formats in which we can create a venture. Number one is sole proprietorship concern. Number two is partnership concern, and there is also a new format in partnership which is known as LLP, limited liability partnership. Third is one person company. Fourth one is either private limited company or public limited company. अगर हमको कोई बिजनेस आइडिया मेरे पास है तो मैं चार तरीके से अपने बिजनेस को कर सकता हूं. किससे? एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एक पार्टनरशिप कंसर्न और एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 there is a new format also which is known as one person company, OPC. और OPC में क्या होता है कि an entrepreneur is different from the venture. जो वेंचर होता है एंटरप्रेन्योर का, उसको डिफरेंट माना जाता है. और अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के थ्रू काम करें, इफ यू डू एनी एक्टिविटी थ्रू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, the PAN card of the sole proprietor will be used, his address will be used. But if we are creating a one person company, it will be different from the entrepreneur. So हमारे पास फॉर्मेट्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी. These are the formats in which we can conduct our start our entrepreneur activity. New venture creation is a process of turning a new idea or technology into a business that can succeed and will attract investors, and investors may be potential investors and potential entrepreneurs also. They try to identify a possible business idea. So it means entrepreneurship, creation of a new venture creation is a process where we actually try to convert the idea or technology into a business. And it involves establishment of new business venture from scratching, growing venture, and then effectively harvesting business ventures. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी फॉर्मेट में बिजनेस करते हैं, कोई हमारे पास आइडिया है तो उसको हम इन डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेट्स के थ्रू कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट द आइडिया और टेक्नोलॉजी इनटू अ बिजनेस प्लान. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन न्यू वेंचर क्रिएशन और न्यू वेंचर स्टार्टअप. नंबर वन इज we need to have one business idea, and if we need to have a business idea, there should be certain creativity. हमारे पास क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी. For creativity, the environment in the organization, whether environment in the family or environment in the society should be very congenial. So first thing is that there should be some business idea in our mind, and that idea should be able to exploit any business opportunity. Okay, if there is an opportunity in the market, and opportunity, from where opportunities come, they actually come from the market, from the government policies, and if we have any idea, we can exploit those opportunities. And after exploiting the opportunities, recognizing the opportunities, we can do the environmental scanning, that is analysis of the industry, economy, and the competitor. So there are various models in management through which we can do the industry analysis, like Michael Porter's 5 forces model. We can use that. हम माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसे इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं. we can analyze the economy by using the various by going through identifying the various parameters and evaluating them. Number third, after scanning the environment, we can do the practical analysis. Practical analysis का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है और उस आइडिया को मैं बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए.
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब है कि उसका कॉमर्शियल वायबिलिटी होना चाहिए। आइडिया होना अलग बात है और आइडिया का कॉमर्शियल वायबिलिटी होना अलग बात है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। नंबर नंबर जैसे अभी बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं और सब लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन को एक एनर्जी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव के तौर पे पेट्रोलियम या डीजल के अल्टरनेटिव के रूप में। लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी हमें नहीं दिखती है जो कि हाइड्रोजन बेस्ड हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं हमारे पास मार्केट में, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, आप लोग आजमगढ़ में हैं, बीएचयू में एक प्रोफेसर थे ओएन श्रीवास्तव सर, जो इस पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी एक्चुअल में हमको मार्केट में ऐसी गाड़ियां नहीं दिख रही हैं जो कि हाइड्रोजन पे चल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी अभी तक आ नहीं पाई है और भी रिसर्च डेवलपमेंट होना जो है उसमें बचा हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ आफ्टर नोइंग द कॉमर्शियल वायबिलिटी वी कैन गो फॉर द स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी वर्ड मैनेजमेंट का नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं है। स्ट्रेटेजी वर्ड जो है वो मिलिट्री साइंस का है, जो सैन्य विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वहां से शब्द को लिया गया। और जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रणनीति, रणनीति में हमेशा हम कंपटीटर क्या कर रहा है इसको ध्यान में रखकर अपनी नीतियों को बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम रणनीति बना रहे हैं तो हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। इन बिजनेस देयर इज नो वन लाइक एनिमी, देयर आर कंपटीटर्स। व्हाई देयर इज नो एनिमी? बिकॉज समटाइम्स व्हाट द कंपटीटर्स आर डूइंग may help us in designing new products and new ideas also, generating new ideas also. And after that, once the strategy is prepared, it is executed. So कौन कौन से steps हैं न्यू वेंचर क्रिएशन में? सबसे पहले हम एक बिजनेस आइडिया का जनरेशन करते हैं नंबर 1 में। नंबर 2 में हम अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं रिलायंस का। आप एक चीज आप ध्यान रखिए, 2 ऑर्गेनाइजेशंस का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। एक है विप्रो एंड अनदर वन इज रिलायंस। विप्रो की शुरुआत जो होती है वो होती है ऑयल प्रोडक्शन से। आज शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि विप्रो कंपनी ने अपनी शुरुआत जो की थी वो ऑयल, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल, उसके प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। लेकिन आज विप्रो को किससे जानते हैं लोग? विप्रो को जानते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पे। अगर आप रिलायंस की बात करें तो उसका एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है विमल। शायद हम लोग उसके नाम से आज की डेट में नहीं जानते हैं, विमल शूटिंग जो आती थी पहले, और इस पे वो लोग काम करते थे। लेकिन आज रिलायंस को जाना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी जो है, जो जामनगर में, उसकी वजह से जाना जाता है। रिलायंस को आज जो है टेलीकम्युनिकेशन में जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया, उसके साथ ही हमको नहीं रहना। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे मैंने बताया विप्रो ने ऑयल के प्रोडक्शन से आज सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है। आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की जो मैं बात कर रहा हूं, टाटा ग्रुप का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है आज की डेट में, वो टीसीएस जनरेट करती है, न कि टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है। आप जमशेदपुर में जाएंगे तो जमशेदपुर में टाटा स्टील ही टाटा स्टील है। लेकिन उसका जो 45% रेवेन्यू है टाटा ग्रुप का, जिसको टाटा जो बॉम्बे हाउस हम कहते हैं मुंबई में, वहां से उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, सभी होल्डिंग कंपनी है वहां, जो टाटा सन्स है, जितनी भी टाटा की कंपनीज हैं, उसमें टीसीएस का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि हम जो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस वेंचर में, जरूरी नहीं है कि हम जीवन भर उसी से चिपक के रहें। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज चेंज होती रहती हैं, हमको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, अपने आइडियाज और जो है उसको स्ट्रेंथन करने होते हैं, और नई अपॉर्चुनिटीज को भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसका मतलब है सेकंड है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। में एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो वेंचर क्रिएट करता है, वो एक बार आइडिया नहीं, उसके पास आइडियाज आते जाते हैं, और वो उसके हिसाब से अपने बिजनेस को कैलिब्रेट करता रहता है। कैलिब्रेशन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो जितने भी एटीएम्स थे उसमें से 100 के नोट हट गए थे जो बंद हुए थे। उसके बाद एटीएम्स को कैलिब्रेट करना पड़ा था नए नोटों के हिसाब से। उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर भी अपने आइडियाज को अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से कैलिब्रेशन करता रहता है। जो मैंने इसके बाद बताया, जो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन के बाद जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम वो करते हैं, जिसमें इकोनॉमी, इंडस्ट्री,
इन सब का एनालिसिस करते हैं, इकोलॉजी का स्कैनिंग करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं क्या कॉमर्शियली वायबल है मेरा प्रोडक्ट, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, द स्ट्रेटजी वी आर प्रिपेयरिंग थ्रू विच कैन वी क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन द प्लेनेट, या इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर, क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है, वेदर वी आर क्रिएटिंग एनी वैल्यू, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल पूरा बिजनेस जो है वैल्यू क्रिएशन का है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 इंटरप्रेन्योरियल ट्रांसफॉर्मेशंस जो पूरे वर्ल्ड को आज की डेट में चेंज कर रहे हैं। पहला है इंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू मैनेजमेंट पैराडाइम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि जो इंडिया का बेस्ट इंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट है एडीआई अहमदाबाद, वहां से भी आपके पास स्पीकर्स हैं, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहीं का पूरा नहीं होता जब तक कि एक्सपर्ट्स उसको वहां पे उस लेक्चर्स को डिलीवर ना करें। वो आपके लेक्चर जो स्पीकर्स हैं उसमें दे आर पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द न्यू मैनेजमेंट पैराडाइम, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग एंड रीजनिंग so common in the dynamic, higher potential, robust, new and emerging firms are now becoming infused and embedded into the strategies and practices of corporate अमेरिका में। यहाँ अमेरिका की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कोई भी विकसित देश, अगर हम किसी भी विकसित देश को देखते हैं, डेवलप्ड नेशन डेवलप्ड क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे एंटरप्रेन्योर्स की संख्या ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मैकेंजी का नाम मैं देना चाहता हूं। यहाँ पे मैकेंजी कंपनी आप लोग जानते हैं, एक कंसल्टेंसी फर्म है मैकेंजी में आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी आईआईएम्स हैं इंडिया में, जो टॉप जो एबीसी आईएम्स जिनको हम बोलते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता वाले जो आईएम्स हैं, वहां के टॉप के इंस्टीट्यूट 5% बच्चे, हार्वर्ड से टॉप के बच्चों को हायर करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी फर्म है, और बहुत उसका रेवेन्यू इतना है, इतना उनका टर्नओवर है, जो एक छोटे से देश नेपाल और भूटान को भी आप मिला दिए, 2-3 देशों को, उनसे ज्यादा उनका टर्नओवर है। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका है, चाहे डेवलप्ड नेशन तो डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि वहां पे एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं यहाँ पे इजराइल का। इजराइल बहुत छोटा देश है, हमारे केरल से भी, केरल के लगभग बराबर है, लेकिन वो एक, आप देखते होंगे जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास आती, क्योंकि वहां पे लोगों को सोचने के लिए, बिजनेस आइडियाज को जनरेट करने के लिए पूरा पर्याप्त समय मिलता है, उनको गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, फंडिंग है, और आज वो रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर अच्छे आर्म्स, एम्यूनिशंस, कैमरास, ड्रोन्स की अगर आप बात करते हैं, या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लीजिए, या लिमिटेड स्पेस में बेस्ट क्रॉप प्रैक्टिसेस की बात करिए, वहां पर आप इजराइल का नाम पाएंगे। उसका रीजन है, इजराइल इतना आगे इसलिए है क्योंकि लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वहां का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है आज की डेट में, इंटरप्रेन्योरशिप जो है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो 9th-10th के का कोर्स कहिए, वहां पे भी इसको जो है इंक्लूड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इंक्लूड? क्योंकि बच्चों का जो टेम्परामेंट है वो शुरू से ही इंटरप्रेन्योरशिप, प्रो इंटरप्रेन्योरशिप बने, और इंटरप्रेन्योरशिप इज बिकमिंग ए डोमिनेंट मैनेजमेंट मॉडल फॉर रनिंग नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस एंड इन द इमर्जिंग फील्ड ऑफ सोशल वेंचर्स। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरप्रेन्योरशिप शुड नॉट ओनली बी confined to the management institutes or only to the only corporate world or for profit organizations, but this particular idea is also implemented in the social ventures, also in the non profit organizations. Okay, so मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जो न्यू आइडिया, एक यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉइज हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि एक स्कीम है जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनीज में इम्प्लीमेंट होती है, जिसको बोलते हैं ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि एम्प्लॉय भी अपने आप को फील करे कि ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी, वो अपने आइडियाज के साथ लेके आए। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, दे नॉट ओनली पे सैलरी टू द एम्प्लॉइज, दे आल्सो पे share of the profits. Why they pay share in the profits? Because employees, they could also feel that they are entrepreneurs, they will also contribute in the new ideas,
so that the business will grow, and once the business will grow they will earn more and more profit. ये ESOP इसलिए लाया गया है कि कर्मचारी की तरह काम न करे, वो अपने संस्थान में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे काम करे जो बिजनेस आइडियाज दे और उस बिजनेस आइडिया से बिजनेस आगे बढ़े। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं, देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर वन इज नीड फॉर अचीवमेंट, नंबर टू इज नीड फॉर पावर, और नंबर थ्री इज नीड फॉर एफिलिएशन। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर कोई क्यों बनता है, क्योंकि द नीड फॉर अचीवमेंट इज द नीड टू एक्सेल एंड द नीड फॉर मेजरेबल पर्सनल अकम्प्लिशमेंट्स। और लोग नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं इसलिए इस तरफ जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग जो होते हैं उनको नीड फॉर पावर होता है, और मैं यहाँ पे थ्योरीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरीज बहुत सारी हैं। नीड फॉर पावर इज द नीड टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू अचीव ए गोल, और थर्ड है नीड फॉर एफिलिएशन एंड इट इज द नीड टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद अदर्स। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की अगर आप बात करें तो कुछ जो न्यू वेंचर्स हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक है न्यू वेंचर्स क्रिएशन से रिलेटेड, और न्यू वेंचर वही क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी हो। तो एट्रीब्यूट्स हो उसके अंदर, कौन कौन से कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी एंटरप्रेन्योर में? सबसे पहला जो होता है वो होता है करेज। करेज में इसलिए नंबर वन पे रख रहा हूं कोर एट्रीब्यूट में, जो करेजियस नहीं है, जो फेल्योर्स को नहीं बियर कर सकता है, जो एडवर्सिटीज के साथ नहीं लड़ सकता है, वो कभी भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। मैंने कई सारे ऐसे, अगर आप गीता पिरामल, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर, एक बुक का नाम लेना चाहूंगा, गीता पिरामल की बुक है बिजनेस महाराजाज। उसको जो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए, बिजनेस महाराजाज बाई गीता पिरामल। इसको आप पढ़िए और इसमें आपको दिखेगा कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करते हैं अपने जीवन में, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर आप अमेजन पे जाएंगे तो अमेजन पे आपको ये बुक मिल जाएगी, इंग्लिश में है बिजनेस महाराजा, और कई सारे, जैसे मैंने हिंदी में लिखा है कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, आप लोग इंग्लिश में गीता पिरामल की ये बुक पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप लोग को पता चलेगा, और सबसे पहली चीज पता चलेगी कि उनके अंदर क्या चीज थी। सबसे पहली चीज है कि उनके अंदर करेज था। नंबर टू इज कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। दिस इज वन ऑफ द कोर एट्रीब्यूट्स, दे हैव कमिटमेंट। मैं एक चीज यहां पे और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आज की डेट में जो एम्प्लॉय भी हम खोजते हैं, कॉम्पिटेंट से ज्यादा हम कमिटेड एम्प्लॉय खोजते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जिन लोगों को जॉब लगती है वो 6 महीना 3 महीने में लोग नौकरी छोड़ देते हैं। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस तीन चीजों को पहले सबसे पहले कभी भी किसी को हायर करने में हम देखते थे कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। आज हम आईक्यू नहीं देखते हैं। उसके बाद आया इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू जिसको बोला गया, और आज की डेट में है एसक्यू जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आज की डेट में जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हायर करने के समय में एसक्यू उनका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो जो एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में अपनी वर्कफोर्स को डिजाइन कर रहे हैं उसमें ऐसे एम्प्लॉइज को, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमिटेड लोगों को चाहते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, उनको ट्रेनिंग देके, उनका डेवलपमेंट करके उनको कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। तो आप देखते होंगे कि जो लोग कमिटेड हैं उनको लॉन्ग रन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। उनके पास होनी चाहिए टॉलरेंस ऑफ रिस्क, क्रिएटिविटी, सेल्फ रिलायंस, एडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशन टू एक्सेल। ये कुछ कोर एट्रीब्यूट्स हैं जो अगर ये किसी एंटरप्रेन्योर के पास है, देन एंड ओनली देन he can create a new grand venture. ओके, और वेंचर क्रिएट करने के लिए मैं एक वर्ड यहां पे ऐड करना चाहूंगा, इफ यू वांट टू क्रिएट ए वेंचर यू शुड बी एडवेंचरस। जो एडवेंचरस लोग होते हैं वही वेंचर क्रिएट करते हैं। तो एडवेंचरस होने के लिए आपको बनना पड़ेगा करेजियस। अगर हम डिजायरेबल, ये तो कोर एट्रीब्यूट, इफ यू टॉक अबाउट द डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स, देयर इज some of the desirable attributes that the person, the entrepreneur should be intelligent, it should be creative and innovativeness होना चाहिए, उसमें एनर्जी, हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आजकल इमोशनल स्टेबिलिटी से ज्यादा हो गया, ईक्यू से ज्यादा एसक्यू। एसक्यू लेवल अगर जिसका हाई है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। उसके पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जिसको लेके चलते हैं।
और कैपेसिटी टू इंस्पायर। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो इंडिया में कभी भी हम टाटा को नहीं भूल सकते हैं। इसलिए नहीं, हम टाटा को कोट करना यहाँ पे इसलिए जरूरी है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ताजमहल जो होटल है उस पर अटैक हुआ तो वहां जितने भी इंप्लॉइज थे, उन इंप्लॉइज के फैमिली का पूरा उसको संभालना, उनको उनके बच्चों को आगे तक पढ़ाना, इसकी पूरी जिम्मेदारी टाटा ने ली। टाटा का एक चीज और देख, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात हो रही है तो वहां पे मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, क्योंकि मुझे वो मालूम है इसलिए मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो लोग जमशेदपुर गए होंगे, और कभी आप यूट्यूब पे देखिए कि जमशेदपुर शहर को बनाने के समय में क्या कॉन्सेप्ट था जमशेदजी टाटा का। वहां पे आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए स्कूल्स हैं, वहां पे अच्छी रोड है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज हैं, खेलने के लिए मैदान है। तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि टाटा की एक वैल्यू है। और वहां पे टाटा में आप देखेंगे, जो व्यक्ति एक बार टाटा में काम करता है उसका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उससे जुड़ना ही चाहता है हमेशा के लिए। एक्सएलआई जैसा इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, आपको मालूम है, टिस जैसे संस्थान, इंडिया में कोई भी चीज आप अच्छा खोजेंगे तो आपको दिखेगा टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखिए, वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन है। आप एयर इंडिया आप देखते हैं, जो सबसे बेस्ट एयर इंडिया सबसे प्राइवेट था पहले, आप फिर वापस टाटा के पास चला गया गवर्नमेंट होने के बाद, तो आप ये चीज आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो कंसिस्टेंसी है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो आए और 30 साल 40 साल चलने के बाद बंद हो गए। टाटा स्टील मुझे जहां तक याद है 1905 के आसपास बनी और लगभग 125 साल हो गए आज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, मैं क्यों बोलना चाहता हूं यहाँ पे, वैल्यू सिस्टम, उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम चला रहा है, व्यक्ति नहीं चला रहा है, वो सिस्टम के थ्रू वो चल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स है, उसमें मेन जो है दैट इज वैल्यूज। ओके, सो in order to create a venture, entrepreneur should have these core and desirable values with them. अगर हम बात करते हैं who is an entrepreneur, जो कि न्यू बिजनेस वेंचर क्रिएट करेगा, तो हम देखते हैं मे बी इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन है, जिसके पास क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हाई हो और जनरल मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस नो हाउ एंड नेटवर्क्स भी हाई हो। आज की डेट में फ्रेंड, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर कौन है, जिसके पास हाई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हो और हाई जनरल मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस नो हाउ एंड नेटवर्क्स हो। आप ये देख रहे होंगे जो सामने आपके एक मैट्रिक्स है। और मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिसका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लो हो और लेकिन जनरल मैनेजमेंट स्किल्स हाई हो। एंटरप्रेन्योर को आप देख रहे हैं जिसमें दोनों ही कॉलम्स आपके हाई आ रहे हैं, हाई क्रिएटिव मैनेजमेंट स्किल। अगर हम बात करें मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोमोटर, इन्वेंटर, तो उससे ज्यादा जो क्वालिटीज है वो एक एंटरप्रेन्योर के पास होती हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पर कि पर्सनल एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाते हैं, पीलिंग द ओनियन जिसको हम कहते हैं, देयर आर सर्टेन एरियाज, जैसे नोन टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स एंड नोन टू एंटरप्रेन्योर एंड टीम। तो ये नोन एरिया होता है जहां पे एंटरप्रेन्योर भी जाने और इन्वेंटर भी जाने चीजों को, उसको बोलते हैं नोन एरिया। नॉट नोन एरिया, अगर कोई एरिया एंटरप्रेन्योर और उसकी टीम को नहीं मालूम है लेकिन इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को मालूम है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लाइंड एरिया। अननोन एरिया वो एरिया है नॉट नोन टू द इन्वेस्टर आल्सो, नॉट नोन टू द एंटरप्रेन्योर आल्सो। और जिसको हम कहते हैं हिडन एरिया कौन सा है, दैट इज नोन टू द एंटरप्रेन्योर बट नॉट नोन टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ये हम बोलते हैं यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्राफ्टिंग एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी। व्हेनेवर वी आर क्राफ्टिंग एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी, वी नीड टू प्रोफाइल द पास्ट। प्रोफाइलिंग द पास्ट, प्रोफाइलिंग द पास्ट का मतलब होता है पास्ट का एनालिसिस, हिस्टोरिकल जो डेटा है हमारे पास उसको एनालाइज करना बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर, मे बी बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स। प्रोफाइलिंग द प्रेजेंट, गेटिंग ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक भी फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग, मैंने शुरू में बताया आपको, कोई भी हम बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए स्टार्टअप, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के तौर पे कर सकते हैं, एलएलपी पार्टनरशिप के कंसर्न। लेकिन जब हमारा बिजनेस स्केल अप होता है तो हमें बहुत सारे आइडियाज की जरूरत पड़ती है और आइडियाज और फीडबैक की जरूरत पड़ती है। जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फीडबैक को बहुत वैल्यू देते हैं। क्यों? फीडबैक फ्रॉम द सेल्स टीम,
फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाइए, किसी बड़े बिजनेस में जाइए, कभी पॉलिसी परचेस के फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दीज फीडबैक्स हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग न्यू स्ट्रेटेजीज। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड थिंकिंग अहेड, ये बात हम करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि इंटरप्रेन्योरशिप मींस पैराडॉक्सेस। इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो में पैराडॉक्सेस है। पहला पैराडॉक्स ये है, एन अपॉर्चुनिटी विथ नो और वेरी लो परसीव्ड वैल्यू कैन बी एन इनॉर्मसली बिग अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है, ये पैराडॉक्स है, कई बार हमको ये देखने में लग सकता है कि ये आइडिया जो है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस आइडिया को कोई व्यक्ति अगर आगे लेके चले, एन एंटरप्रेन्योर, it may be a big idea which can capture the market or which can let the other products to close down from the market। तो इसका मतलब एक पैराडॉक्स है कि जिस आइडिया को कई बार हम छोटा समझते हैं वो एक आइडिया बहुत बड़ा हो सकता है। नंबर 2, इट टेक्स मनी टू मेक मनी। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि सिर्फ इट टेक्स मनी टू मेक मनी, कई बार मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड्स, मनी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। These are our 5 factors of production which is required for any economic activity, but this is also a paradox that only money is required to make money। Sometimes idea creates money। और आपने देखा होगा जब आइडिया का जब एड आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी करके आता था एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडिया जब लॉन्च हुआ था सेलुलर फोन, उस समय आप ऐड देखे होंगे, तो उस समय आपको पता चलता होगा, क्योंकि आप लोग की भी उतनी उम्र है, आप लोग देखते पता चलता होगा कि एक आइडिया जो है पूरे विश्व को बदल सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक आइडिया आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग सीके प्रहलाद को जानते हैं, चूंकि आप लोग प्रबंधन के व्यक्ति हैं, सीके प्रहलाद, जितनी भी शैशे आप देखते हैं आज की डेट में, आप लोग देखते हैं कि जो हमको ऑयल मिलता है वो पैकेट्स में मिलता है, स्मॉल पाउचेज में। आप देखते हैं स्मॉल हमको ऑयल मिल जाएगा 1-2 रुपए में। ये क्या है? अगर ऑयल स्मॉल सेशेस में है, जिसको हम बोलते हैं शैशे क्रांति, शैशे रिवोल्यूशन, ये कौन लेके आया? ये लेके आया सीके प्रहलाद। इंडिया गए थे, विदेश में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि स्मॉल पैकेट्स में चीजों को दीजिए। उन्होंने कहा वॉल्यूम को बढ़ाओ, और वॉल्यूम बढ़ेगा। तुम 10 रुपया लेते हो एक प्रोडक्ट बेच के, आप एक रुपया मार्जिन कमाओ और 100 चीज बेचो। तो जो आप शैशे क्रांति देखते हो, कौन लेके आया है? सीके प्रहलाद। तो एक आइडिया ने पूरे विश्व को बदल दिया। अगर आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, और आपको चाहिए कि हमको पेस्ट लेना है, आपको 5 रुपए का भी पेस्ट मिल जाता है। ये क्या है? ये एक आइडिया है जिसने पूरे विश्व को ही बदल दिया है। ठीक है, तो समटाइम्स नॉट ओनली मनी बट एन आइडिया। और चूंकि सीके प्रहलाद एक बिजनेस कंसल्टेंट भी थे, बिजनेस कोच भी थे, और आप देखिए पूरे विश्व में उनका ये आइडिया शैशे क्रांति जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मतलब सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स कंसिडरेबल थॉट, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, yet is basically an unpredictable phenomena। ये भी बहुत पैराडॉक्स है कि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब चीज करें। मैनेजमेंट में हम लोग पॉटस्कॉर पढ़ाते हैं, प्लानिंग से स्टार्ट होके और बजटिंग पे वो एंड होता है या कंट्रोलिंग पे एंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ प्लानिंग। कई बार आप देखते होंगे जो लोग स्टॉक मार्केट में दूसरों को राय देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, फायदा हो जाएगा, उनको ही लॉस हो जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन ये एक पैराडॉक्स है ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप ये रिक्वायर करता है, ये अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना नहीं है, प्रिडिक्टेबल है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे हर क्षेत्र में लागू हो रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को, सोशल एक्टिविटीज को बेटर प्लान कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस टू प्रॉस्पर, राइगर एंड डिसिप्लिन मस्ट अकम्पनी द प्रोसेस। देखो फ्रेंड्स, मैं तो ये मानता हूं, आप लोगों को भी राय दूंगा कि आप लोग जाइए और अपने YouTube में जरूर सर्च करिएगा, वर्क प्लेस एट गूगल, इसको डालिएगा। जो लोग गूगल में काम करते हैं, गूगल कंपनी में, उनका वर्क प्लेस कैसा होता है। जरूर उनका वर्क प्लेस वैसा नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि टेबल है, चेयर है। वहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई गाना गा रहा है, कोई जिम में है, फिर आया काम किया। अब एक बार जरूर सर्च करिएगा इसको यूट्यूब पे, क्योंकि गूगल एक ऐसी कंपनी है जहां पे क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है, और वहां पे अगर आप डिसिप्लिन में अपने एम्प्लॉइज को रखेंगे तो क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं।
क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए? अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को, अपने अपने मैनेजर्स को क्रिएटिव बनाना है तो आपको देना पड़ेगा फ्रीडम। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम की कंस्टेंट है, वर्क प्लेस एट गूगल जरूर आप लोग यूट्यूब में देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहां का वर्क प्लेस कैसे डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, और गूगल को इतना इतना बड़ा क्यों कहा जाता है आज की डेट में। ठीक है। फिफ्थ है, द ग्रेटर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, द लेस यू विल कंट्रोल योर अल्टीमेट डेस्टिनी। और लास्ट है, टू रियलाइज लॉन्ग टर्म वैल्यू you have to forgo the temptations of short term profitability। तो ये बात एकदम सही है कि अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको छोड़ना होगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, इससे पहले जो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये एंटरप्रेन्योरशिप के पैराडॉक्सेस हैं। जैसा मैंने यहाँ पे 6 चीजें बताई, ये पैराडॉक्स है और इनको हमको कंसीडर करना चाहिए। देख सोचा है, ये है हमारा टीमन्स मॉडल ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी है, अगर तो रिसोर्सेज हम जनरेट करते हैं, टीम बनाते हैं, फिर उस टीम से अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करते हैं। तो ये एक टीमन्स मॉडल सजेस्ट किया गया था, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लीडरशिप, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन, तो और ये बीच में है बिजनेस प्लान, फिट्स एंड गैप्स। तो जब हम बिजनेस, मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि बिजनेस प्लान या वेंचर जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक मॉडल था, ये टीमन्स मॉडल बोला जाता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में। मैंने सोचा आप लोगों को इसको दिखा दूं। दीज आर द लीडिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फास्ट ग्रोथ फर्म्स। आज की डेट में जितनी लीडिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं फास्ट ग्रोइंग फर्म्स की, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज that are perceived as the highest quality to expanding segments। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऑफलाइन अगर ले रहा होता लेक्चर, तो जरूर आपसे एक क्वेश्चन सामने पूछता कि व्हाट इज क्वालिटी। मेरे लिए क्वालिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, और वहां पे आप 10 साल बाद भी जाए, 5 साल बाद भी जाए, और वैसा ही टेस्ट आपको मिले, वैसे ही कंसिस्टेंसी मिले, तो आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। क्वालिटी जो है ना, इट इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। क्वालिटी को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं डिस्कस। वो क्या है, कैसा हम लोग परसीव करते हैं, कैसा फील करते हैं, क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी जो है वो आती है हमारी कंसिस्टेंसी से। packaging new products and services that stand out in the market as best of the breed। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेके आए तो वो बेस्ट होना चाहिए मार्केट में, और बेस्ट होने के लिए हमको करना पड़ेगा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट्स में लगातार सुधार करना, मार्केट में जो इनपुट्स मिले, हमें कस्टमर से मिले, सेल फोर्स से मिले, उसको शामिल करके अपने प्रोडक्ट को हमेशा क्या करना, अपग्रेड करना। जैसे एक एग्जांपल फ्रेंड मैं यहाँ पे देना चाहता हूं कि एप्पल जो कंपनी है, बहुत सारे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोगों में किसी के पास एप्पल फोन हो। एप्पल जो कंपनी है वो इतना, अभी आईफोन मेरे हिसाब से 14 मार्केट में लॉन्च हो गया है, लेकिन आईफोन 14 जो है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 इसकी सीरीज आ रही है। क्या क्या चीज है जो एप्पल को और लोगों से अलग करती है और कंपनी से अलग करती है? वो है उसका इनोवेशन। उसका है इनोवेशन। क्यों इनोवेशन? उसका आपको मालूम है कि उसका डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे फोन चलता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग के पास एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड उसमें चलता नहीं, आपको मालूम है। लेकिन आईफोन क्यों इतना बिकता है? उसका रीजन है उसके सिक्योरिटी, जो उसका डेटा का सिक्योरिटी है, जो जिस हिसाब से वो चलता है, जो उसकी डिजाइनिंग है, वो इनोवेशन करता है। इनोवेशन हमेशा, इसीलिए एप्पल का आज की डेट में कोई कंपटीटर नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जैसा हम लोग सोचते हैं कि एप्पल अब खत्म होने वाला है, उसके साथ ही नए फीचर्स वो आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि नई नई चीजों को हमेशा अपने प्रोडक्ट में क्वालिटीज को ऐड करना। डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विस बेनिफिट्स दैट डिमांड एवरेज और हायर मार्केट प्राइसिंग। Generate revenue flows from existing products and services that typically sustain approximately 90% of the present revenue base। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। Create high impact new product and service improvements
with development expenditures that typically account for no more than approximately 6% of revenue. तो यहाँ पे मैं 6% क्यों बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसका 6% जो है कम से कम उसको लगाना चाहिए प्रोडक्ट्स के इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसको मैं उसमें न जाकर आगे डिटेल में ये ना करके, क्योंकि टाइम का भी एक कंस्टेंट है। तो लीडिंग फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ फास्ट ग्रोथ, ये कुछ फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो नए वेंचर्स के लिए अगर वो चाहते हैं कि फास्टली ग्रो करें तो जरूरी है। पहले, एंटिसिपेट मल्टीपल राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑन एन एवरेज 2.5 इयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई न्यू बिजनेस वेंचर क्रिएट करते हैं तो हर 2.5 इयर्स लिखा है, एवरी 2.5 इयर्स पे हमें अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंसिंग हो, ऐसा सोचना चाहिए। नंबर 2, सिक्योर फंडिंग सोर्सेस कैपेबल ऑफ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग देयर पार्टिसिपेशन अमाउंट्स। जो फंडिंग जो हमारे सोर्सेज हैं वो सिग्निफिकेंटली हमको एक्सपेंड करने चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में। यूटिलाइज फाइनेंसिंग व्हीकल्स दैट रिटेन द एंटरप्रेन्योर्स वोटिंग कंट्रोल। हाँ, यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग करें, एट दैट टाइम वी शुड लर्न दैट the financing should be in such a way that the voting rights retain in the hand of the entrepreneur. नहीं तो क्या होता है, अगर हम इक्विटी का बार बार सेल करते जाएंगे तो वोटिंग राइट्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं रहता है। मेंटेन कंट्रोल ऑफ द फर्म बाय सेलेक्टिवली ग्रांटिंग एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इफ यू ऑफर ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम जिसको हम बोलते हैं, the employees will become the owner of the company. Link the entrepreneur's long-term objective to a defined exit strategy in the business plan that we will discuss in the next slides also when we will talk about business plan creation. Leading management practices of fast-growing firms. These are all management practices. Use a collaborative decision-making style with top management teams. Friends, यहाँ पे एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि को-क्रिएशन ऑफ नॉलेज। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति, दो चीजें मेरी याद रखिएगा, अगर आप कोई बिजनेस आइडिया आपके पास है, कोई न्यू बिजनेस वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक होनी चाहिए नेटवर्किंग। पूरा बिजनेस जो है नेटवर्क्स पे आधारित है, ठीक है। मैं यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप मार्केटिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिटेलिंग में भी पढ़ा होगा, हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम अगर एक साइकिल का टायर, साइकिल का चक्का देखते हैं तो क्या होता है, बीच में जो है वो हब होता है और बगल वाली तिरियां जो होती है स्पोक्स होती हैं, हब एंड स्पोक। तो जो नेटवर्क मैंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ पिछले साल जब कोरोना टाइम था, तो उसमें किताब मैंने पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक आती है किताब, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। उसका नाम था नेटवर्किंग। इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, नेटवर्किंग ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास नेटवर्क्स हैं तो अपने बिजनेस वेंचर को आप कितना भी स्केल अप कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज बहुत ध्यान से रखा होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा, इफ देयर इज PhD CII है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ये जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, दीज आर ऑल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे फेयर ट्रेड लगाती है। वो फेयर ट्रेड जो है ना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां पे हम नेटवर्किंग कर सकें। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है, एक अच्छे बिजनेस वेंचर को क्रिएट करने के लिए को क्रिएशन ऑफ नॉलेज। को क्रिएशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि हमें अकेले जो हम नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, दैट नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन ए एक्सॉर्बिटेंट वे बाय कोलैबोरेटिंग विद मेनी पीपल। कोलैबोरेशन एंड को क्रिएशन ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो को क्रिएशन के लिए आपको एम्प्लॉइज के साथ, आपको कंपटीटर साथ सबसे कोलैबोरेट करना पड़ता है। कंपटीटर्स के साथ भी आज की डेट में फ्रेंड्स। नंबर 2 इज एक्सेलरेट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बाय असेंबलिंग ए बैलेंस्ड टॉप मैनेजमेंट टीम विद और विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। ये भी है जहां पे हम ट्यूनिंग जो है टॉप मैनेजमेंट का, उसको मिडिल और लोअर मैनेजमेंट के साथ कर सकें।
develop a top management team of 3 to 6 individuals with the capacity to become the entrepreneur. Align the number of management levels with the number of individuals in top management. Involve the board of directors heavily at the strategic inflection point. जो board of directors होते हैं, you might be knowing that जो board of जितने भी directors होते हैं, they are very equipped with the various sets of skills. They have various conceptual skills, so they must be taken care of while framing the strategic plans. Repeatedly calibrate strategy with the regular board of directors meetings. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो डायरेक्टर के बोर्ड में होते हैं लोग, उनके पास बहुत अनुभव होता है और उस अनुभव का लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए अगर हम अपना बिजनेस वेंचर क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है. Establish entrepreneurial competency first in the functional areas of finance, marketing and operation. These are all functional areas. Assemble a balanced board of directors composed of both internal and external directors. Let us see. These are all leading planning practices of fast growth firm. What are these? Prepare detailed written monthly plans for each of the next 12 to 14 months. अगर आप चाहते हैं, these are all leading planning practices of fast growth firms. मतलब जो वेंचर हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए. Establish functional planning and control systems that tie planned achievements to actual performance and adjust management compensation accordingly. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. periodically share the employees the planned versus actual performance. Next is link job performance standard that have been jointly set by management and employee to the business plan, and prospectively model the firm based on benchmarks that exceed industry norms, competitors and the industry leaders. So now coming, when is an idea an opportunity? कब कोई एक आइडिया अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है? The essence 5 attributes. It is important to know the difference between features, products and companies. Real business opportunities have the following attributes. Number 1, क्या क्या attributes होते हैं? They create or add significant value to customer or end users. पहली चीज, जो भी आइडिया है, अगर बिजनेस वेंचर उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी में आइडिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो that idea should create or add significant value to a customer or end user. जो end user है या customer है, उसको value create होनी चाहिए हमारे आइडिया से. Number 2, they address a true market problem with some form of competitive advantage. Friends, every problem of the customer is opportunity for the managers, opportunity for the entrepreneurs, opportunity for those who have ideas, because if there is no problem, there will be no opportunity in the market. So what is I usually, when I take the class, if I have to define what is product, I usually define that product is a bundle of benefit. प्रोडक्ट क्या है? कोई भी प्रोडक्ट, वो बंडल ऑफ बेनिफिट है. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन वी परचेज ए कार, we don't purchase a car, we purchase comfort, we purchase speed. हम जब भी कार खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं? स्पीड खरीदते हैं. हम टेलीविजन नहीं खरीदते हैं, टेलीविजन का डिब्बा नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं? हम खरीदते हैं इंटरटेनमेंट. हम मोबाइल फोन नहीं खरीदते हैं. ये मोबाइल फोन छोटा भी हो सकता है, पतला भी. हम खरीदते हैं कनेक्टिविटी. तो एक्चुअल में प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट? बंडल ऑफ बेनिफिट. एंड प्रोडक्ट इज ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम के लिए. तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होना चाहिए. और द नीड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस इज परवेसिव. द कस्टमर हैज ए हाई सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड इज विलिंग टू पे फॉर ए सॉल्यूशन. यहां पे एक चीज और होनी चाहिए कि जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए कस्टमर के पास. अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर कॉमर्शियली वायबल प्रोडक्ट नहीं होगा. दे हैव रोबस्ट market growth, margin and profitability characteristics that can be
प्रूवन। तो इसका मतलब है कि जो आइडिया है, अगर वो अपॉर्चुनिटी तब हो सकता है जब उसके लिए रोबस्ट मार्केट ग्रोथ हो, मार्जिन हो और प्रॉफिटेबिलिटी हो, एंड द फाउंडर्स एंड द मैनेजमेंट टीम हैव collective domain experience that matches the opportunities। जो उसमें फाउंडर्स हैं, फाउंडर ऑफ द आइडिया, उसमें मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिव डोमेन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी को मैच करे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इस चीज को कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू वेंचर क्रिएशन नीड्स ए बिजनेस प्लान। जब भी हम वेंचर, फ्रेंड्स ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आई एम वेरी सॉरी कि आपको मेरे हिसाब से बहुत विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब हम बिजनेस प्लान क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स बिजनेस प्लान के क्या होते हैं। अगर एक वेंचर व्हेन वी आर क्रिएटिंग ए वेंचर, उस वेंचर क्रिएट करने में कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखते हैं। नंबर 1, इंडस्ट्री एंड द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सिक्यूटिव समरी पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक्सिक्यूटिव समरी हम बनाते ही हैं जब भी कोई बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान बनाना, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, there is a learned professor who will talk on business plan, so I am not going into detail. There is already a special session for that, but I am giving you an overview of that. That is, whenever we are creating a new venture, we need to submit a business plan, and whenever we are submitting a business plan to someone who is going to finance that, maybe an institution, maybe an angel investor, maybe an venture capitalist, maybe any government plan. So whenever you are submitting it, the business plan, it should contain all these things. Number 1, there should be some executive summary, because unless you don't submit the business plan, you are not going to get the finance, whether it may be in the form of debt or in the form of equity. Okay, and sometimes venture capitalists, whenever they enter into your ideas in your venture, they actually try to look into the business plan, whether what is the future of that, and they used to analyze all these points. Number 1, they usually the industry and the company and its products and services. We try to find out what is the industry in which we are going to operate, a name of the company, what is the concept of the company, the products and services, entry and growth strategies. We also try to see in which type of market structure we will our business venture will be. जैसे हमको मालूम है कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसके साथ परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। जब भी हम कोई बिजनेस वेंचर बनाते हैं तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम किस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करने जा रहे हैं। ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम ओलिगोपोली में हैं तो हमारे परफेक्ट कंपटीशन है, तो एंट्री और एग्जिट बैरियर्स कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी देयर विल बी मेनी कंपनीज हु विल बी ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन हम मोनोपोली में, जैसे आज की डेट में रेलवे है, रेलवे जो यूटिलिटी है, बिजली है, बिजली में तो खैर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं, ओलिगोपोली मार्केट हो गया है वो, पेट्रोलियम ओलिगोपोली है। तो हम रेलवे की बात करते हैं, अगर उसमें हमको इंटर करना है उस वेंचर, वैसे गवर्नमेंट ने जो उसकी स्टार्टअप और स्टैंड अप पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे जो एरियाज हैं रेलवे के, वहां पे ऑफर किया है कि नए वेंचर्स भी आप स्टैब्लिश करके उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को भी। अभी आपने देखा होगा कि जो आर्म्स एंड अम्युनिशंस का एरिया है, अभी एक किसान वाला जो एरिया है, जो कृषि का एरिया है, उसमें ड्रोन्स जो लोग डेवलप कर रहे हैं स्टार्टअप्स के थ्रू, गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट उनको हैंड होल्डिंग कर रही है। क्यों हैंड होल्डिंग कर रही है? क्योंकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करना है, और डबल तब तक नहीं होगा जब तक टेक्नोलॉजी लेड नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी लेड कब होगा? जब उसमें एंटरप्रेन्योर्स इंटर करेंगे। तो अभी ड्रोन जो सिस्टम है वो आपको एग्रीकल्चर में बहुत जल्दी दिखेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, नए नए वेंचर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, जिसमें कस्टमर्स का, मार्केट साइज का। अब मैं यहाँ पे जब भी बोलता हूं मार्केट, तो मार्केट का मतलब होता है डिमांड। अगर हम करते हैं मार्केट शेयर, इसका मतलब है कि जो टोटल डिमांड है उसमें मेरे प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड है। मार्केट मींस डिमांड। ओके, तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद है द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा। ठीक है, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं, मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है ये देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल प्लान वी ट्राई टू डेवलप, सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट,
ओवरऑल शेड्यूल क्या होगा, जिसके लिए हम गैंट प्लान भी बनाते हैं कई बार। गैंट प्लान में यहाँ पे डिटेल में नहीं करूंगा डिस्कस, क्योंकि गैंट प्लान बनाया जाता है जब आप पर्ट और सीपीएम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस दिन में कितनी एक्टिविटीज जो है ना, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन है। मैं डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, वो सभी चीज हम बनाते हैं उसमें। द फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, प्रपोज्ड कंपनी ऑफरिंग्स, और उसके साथ साथ कुछ हम अपेंडिसेस भी बनाते हैं जो उसमें होते हैं। जब भी हम प्लान को सबमिट करते हैं उस समय पे ये चीजों को बनाते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेजेस ऑफ वेंचर ग्रोथ, क्रूशियल ट्रांजिशंस एंड कोर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि अब मेरी पीपीटी एंड की तरफ है, इसको जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। अगर मेरा पीपीटी विजिबल है तो आप लोगों को ये पीपीटी मेरा जरूर देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं बिजनेस वेंचर की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वेंचर एंड जस्ट गो थ्रू दी some facts and figures here, because I have also borrowed from somewhere, but I have tried to align it with my lecture कि जब आपकी सेल्स जो है ना 0 to 5 मिलियन हो तो एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए, 20 to 25 होने चाहिए, और कोर मैनेजमेंट जो मोड है वो है डूइंग। तो एक छोटे बिजनेस में, जरा यहाँ पे आप लोग देख लें क्रूशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमारा 5 to 15 मिलियन, मिलियन का मतलब सबको मालूम है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन टू 15 मिलियन हो तो कर्मचारियों की संख्या, दैट इज अबाउट एम्प्लॉइज, इट शुड एक्सपेंड फ्रॉम 25 to 75 एंड वी नीड टू इंटर कोर मैनेजमेंट जो मेरा मॉडल मोड होगा, दैट विल बी मैनेजिंग इट। ओके, और जब बिजनेस हमारा एक्सपेंड होता है, दैट इज फ्रॉम 10 मिलियन टू 25 मिलियन हमारा जो सेल्स है या टर्नओवर है, इन दैट केस वी नीड टू एक्सपेंड आवर एम्प्लॉइज। दिस इज जस्ट ए थंब रूल, it is not something which is very scientific, but there are some thumb rules on which the business is basically conducted. For all type of problems, there are not only you can say the technical solutions, but there are sometimes thumb rules also on which the business is operated. So here we need to manage the managers. Okay, so these are some facts. और यहाँ पे आप लोग चीज देख रहे होंगे कि शुरू में जब भी हम कोई ये ट्रांजिशन है तो आप देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर इसके बाद स्टार्टअप है, हायर ग्रोथ, ये मैच्योरिटी, और फिर ये आपको आ गया स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब 100 मिलियंस आ गया तो ये स्टेबिलिटी हो, और इसके लिए ये सेल्स इस साइड में हमारा वाई एक्सिस पे सेल्स है या टाइम इन ईयर्स है, एंड यू मे सी दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट 0 to अभी एक फ्रेंड्स अपने लेक्चर को, क्योंकि मेरा लेक्चर एंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा पेटीएम के बारे में। पेटीएम मेरे हिसाब से जितने लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम में, उसमें लगभग ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं कि 90 to 95% लोग या तो पेफोन या पेटीएम या गूगल पे कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे। पेटीएम का जो शेयर है, एक बार जरूर आप लोग जाके देखिएगा पेटीएम का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, जरूर आप लोगों को देखना चाहिए पेटीएम का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। पेटीएम के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी घाटे में चल रही है, लेकिन जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो 1.5 साल 2 साल तक उसमें कोई प्रॉफिट हो, क्योंकि उस समय में हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो फ्रेंड्स, और जब हमारा यहाँ पे आप देखें स्टार्टअप, जब भी हम स्टार्टअप करते हैं तो कई बार हमारे पास आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। हम क्यों बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स? एक एग्जांपल मैं देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, अगर मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आवाज आपके पास आ रही होगी, मुझे 2 लड़के आईआईटी पटना का, उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। अभी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेयर आई एम प्रोफेसर, दे कांटेक्टेड मी। आप चाहे तो इसको नोट आउट कर सकते हैं, बिग ओ हेल्थ, बिग BIG, बिग ओ हेल्थ, इसका ऐप अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर में। ये दोनों बच्चे जो है ना, 2 बच्चे मिलके इन्होंने स्टार्टअप ओपन किया, मेरे पास आए थे। और ये काम क्या करता है, बिहार में लोगों को डॉक्टर से टाइम लेना पड़ता है। अब जब जाते हैं वहां पर तो उनको लाइन लगाना पड़ता है, सुबह आए और शाम तक लाइन लगाए, शाम को नंबर आएगा। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक आइडिया है, मैं आपको बहुत अच्छा खूबसूरत आइडिया है, चूंकि मैं इससे जुड़ा हूं। वो बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया है, और मेरे 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने जॉब ऑफर भी किया है, और 5 बच्चे मेरे वहां पे इंटर्नशिप कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ऑनलाइन ऐप बनाया, जिसमें जो लोग है ना, आप देखिएगा आपके बनारस में और यहाँ भी लॉन्च हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, वहां पे आप ऑनलाइन जाके पे कर दीजिए डॉक्टर का फीस, 20 रुपीज लेता है एक्स्ट्रा वो, और आपको पता चल जाएगा 3 से 4 के बीच में आपको टाइम मिलेगा, या 5 से 6 के बीच में जाना है, उसमें टाइम स्लॉट्स दिए हुए।
उस टाइम पे आप जाइए और डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैंने अपने बच्चे को दिखाया इसके माध्यम से। मुझे क्या फायदा हुआ, मैं सुबह जाता, नंबर लगाता, वो बोलता कि 3-4 बजे आइए, मैं घर से ही मैंने नंबर लगा लिया। बिगो हेल्थ उसका नाम है, ऐप का नाम। और वहां से मुझे फायदा ये हुआ कि दिन भर मैं काम किया, शाम को 5 से 6 का मैंने स्लॉट लिया और जाके डॉक्टर को दिखा लिया मैंने। और उसका बंदा भी वहां पे था जो मुझे फैसिलिटेट करा, वो मेरे पास आया और उसने मुझे दिया एक पानी का एक छोटा सा बोतल और एक बच्चे को एप्पी, जिसको बोलते हैं फ्रूटी कह लीजिए आप लोग, वो दिया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा कि मेरा टाइम सेविंग हुआ, मैं दिन भर अपना काम कर पाया और परेशान नहीं हुआ। तो जो उसके पास बिजनेस आइडिया था, उसने क्या देखा कि लोग परेशान है डॉक्टर से टाइमिंग के लिए, तो उस आइडिया को उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और अभी तत्काल में उसको एंजल इन्वेस्टर मिला है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जब आप स्टार्टअप करते हैं तो उस समय देवदूत की तरह, भगवान की तरह आपके पास आएंगे और आप में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ समय बाद यहाँ पे जो, अगर मेरा आप लोग स्लाइड दिख रहा हो, तो कुछ समय बाद जब ये हाई ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है ना, तो यहाँ पे इंटर कर जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ग्रोथ और मैच्योरिटी की तरफ जब बढ़ने लगेगा ना हमारा प्रोडक्ट, तो वहां पे आ जाते हैं, या सेल्स बढ़ने लगेगी, तो वहां पे पहले कौन आते हैं, एंजल इन्वेस्टर, फिर आ जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, हम लोग में इक्विटी पार्टिसिपेशन करते हैं। इक्विटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनर बन जाएंगे उसमें, और राइट टाइम पे जब बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, व्हेंस द बिजनेस वैल्यू इंक्रीजेस दे विल एग्जिट। और लास्ट में आता है जब वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए, बिजनेस बढ़ गया, तो हम लोग अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड की जगह हम कर सकते हैं लिमिटेड कंपनी। एंड वंस द कंपनी इज लिमिटेड, इट इज लिस्टेड ऑन द सेबी, on Bombay Stock Exchange, on the basis of the turnover and all the criteria, after fulfilling the BSC का जो criteria उसको, we can offer IPO। क्या है, पहले एंजल इन्वेस्टर आए, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, और फिर हमने आईपीओ लॉन्च कर दिया। जनरल पब्लिक को जो है वो शेयर्स ऑफर हो गए, और हमने क्या कर दिया, अपना एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी। तो जब भी हम अपना बिजनेस वेंचर बनाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम जब पढ़ते हैं, तो हमारा जो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या है, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएटिंग, मैनेजिंग आउटसाइड प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप कैपेसिटीज हैं फॉर द न्यू वेंचर क्रिएशन। यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर दी सेंट्रल इश्यूज इन एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस। तो वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज और सप्लायर्स, जब वैल्यू क्रिएट होती है तो इन लोगों को फायदा होता है। और स्लाइसिंग द वैल्यू पाई, तो जब भी वैल्यू पाई स्लाइस होगी तो एलोकेटिंग द रिस्क एंड रिटर्न्स, और कैश, रिस्क और टाइम, ये जो है ना, इसमें हम डिवाइड करते हैं जो वैल्यू पाई है उसको। और लास्ट में है कवरिंग रिस्क। रिस्क कैसे है, डेट, टेक कंट्रोल एंड इक्विटी स्टेज कमिटमेंट्स। तो इक्विटी का मतलब, अगर आप लोग पढ़े होंगे मैनेजमेंट में, इक्विटी का मतलब होता है क्लेम। अगर लिटरल मीनिंग है इक्विटी का क्लेम, क्लेम किसका, क्लेम ऑफ द ओनर ऑन द बिजनेस, द क्लेम ऑफ द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज इक्विटी। ओके, तो लिटरल मीनिंग उसका यही है। जरा देख देते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। तो ये अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है, टाइम टू क्लोज, फ्यूचर अल्टरनेटिव, रिस्क रिवार्ड, पर्सनल कंसर्न एंड सोर्सेस एंड डेट इक्विटी अदर में यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैश ड्रिवन साइकिल, बर्न रेट, ऑपरेशन नीड्स, वर्किंग कैपिटल, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। कैपिटल और बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड वैल्यू क्रिएशन। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है किसी बिजनेस वेंचर के लिए। स्ट्रेटजिक एंटरप्रेन्योरशिप इसको कहते हैं। स्ट्रेटजिक एंटरप्रेन्योरशिप में इनपुट्स क्या होते हैं, इनपुट्स बेसिकली इज फ्रॉम एनवायरमेंटल फोर्सेस, maybe from the government policy and other market forces, organizational resources, man, material, machinery, methods, जो भी होते हैं organizational resources, human resource, intellectual resource, financial resources, natural resources, these are all organizational resources, and individual resources in the form of commitment, creativity, ये जितने भी individual resources हैं, these are resource orchestration, ये process है। और output के form में हमको क्या मिलता है, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है हमें, क्रिएटिंग वैल्यू एंड अदर बेनिफिट्स, एंड सोशल, इससे होते हैं हमको सोशल बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स एंड इंडिविजुअल बेनिफिट्स। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जो एंटरप्रेन्योर जो होता है
वो अपने बेसिकली जो सोसाइटल बेनिफिट्स है और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए काम करता है, क्योंकि उसी से उसको मिलता है अपना इंडिविजुअल बेनिफिट. सो दीज आर द फ्यू बुक्स व्हिच आई वुड लाइक टू रिकमेंड. न्यू वेंचर क्रिएशन, यू कुड सी दैट स्टीफन और रॉबर्ट की ये बुक है. न्यू वेंचर क्रिएशन पॉल बर्न्स की है. और एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी आप यहाँ देख रहे हैं, न्यू वेंचर क्रिएशन. आई विल शेयर दिस पीपीटी विद द अमरीश जी and he will ultimately share it with you all. So these are all from my side. These are the some a few, because within this limited time it is not possible to cover all the topics, because it will be, and my session is post lunch, and I know that most of you may be loaded with lot of information since morning. Adding more value was my objective to this particular program. But if you go through all these books, you can learn more and more. You can add value to your knowledge. So please go through that. If you are really want to become an entrepreneur, you want to create a business venture, take risk. And also one thing I would like to add, take blessing also. Take risk, take blessing, and become a successful venture creator. Thank you to all of you, and thank you for listening. If there are any questions, Thank you very much, sir. I can say there is from more than 1 hour, 10 minutes, 15 minutes, you have spoken with the same spirit and same power and energetic boost for our participants. And I'm very thankful to you the way actually you quoted the examples that how we can start the enterprises, what the process we can follow, what the principles actually you saw the some models, Porter's models, and some theoretical knowledge. So this will be very beneficial for the participants of this workshop. As you clearly mentioned that the co-creation of knowledge and the importance of the networking is the key features to success your ventures. And we never hesitate to take risks, and for if you are pitching your ideas, you have a clear business plan. Tomorrow morning we have a session for specifically for business plan presentation, because if you will deliver anywhere you are going with your plans, the clear and strong business plan is required. And so you put all your thoughts, all your understanding, all your future landscape into the business plan itself. So sir has beautifully introduced us to these topics, and I'm very thankful to you. We want you physically, I'm again telling you, because I understand that how you love Azamgarh and the facilities which are here. But in future we will love to host you physically. And on behalf of organizing committee, this, if you can see, if you can, this is the memento which will be physically delivered to you for this workshop. I will send this you to your destination. And by your blessings, the workshop is this one. The workshop is, you can show this to sir, because, yeah. Sir, can you, yes, I can see. it's, Yes. yes, sir. Amresh ji, In your absentia, Amresh ji, I am very much happy that in Azamgarh you have tried to collect all the stars from Speaker pe dal diye. various states, various international. There are international speakers also, and it is a very unique, you can say, this one week international workshop. So I am very happy, or I am very happy that such a dynamic faculty is there. So जितने भी participants हैं, मुझे उम्मीद है कि इसको करने के बाद जरूर एक आइडिया तो आएगा वहां से जो वैल्यू क्रिएट करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ऑफ करो, इसकी आवाज बंद करो. हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सो मच अमरीश जी. ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद. चलिए, आप ऑफिशियली फाइनल